السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا متحدہ عرب امارات کا دورہ، دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں اربوں ڈالرز کے معاہدے، معاشی ترقی، علاقائی استحکام اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے دور کا آغاز۔ صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی قیادت میں دو طرفہ تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں، ان منصوبوں کے ثمرات بہت جلد سامنے آئیں گے، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے رائل سعودی لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ کی جی ایچ کیو میں ملاقات، دفاع، سیکیورٹی اور فوجی تربیت کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی علاقائی صورتحال اور مشرق وسطی میں جاری تنازع پر بھی گفتگو۔ کمانڈر رائل سعودی لینڈ فورسز کی دہشت گردی کے خاتمے اور خطے میں قیام امن کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف۔ بنو میں سیکیورٹی فورسز پر خودکش حملہ آور افغان شہری نکلا، دہشت گرد رابن اللہ کا تعلق حافظ گل بہادر گروپ سے ہے، تذکرے کی بنیاد پر پاکستان میں داخل ہوا، دھماکے میں 2 شہری شہید اور 3 اہلکاروں سمیت 10 افراد زخمی ہوئے۔ افغان حکومت نے ٹی ٹی پی کے خارج اور دہشت گرد کو قانونی دستاویز کیوں دی؟ عوام کا سوال۔ حج 2024 کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 15 نامزد بینکوں میں 12 دسمبر تک درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ 89,605 پاکستانی عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ سرمایہ کاروں کا مثبت معاشی پالیسیز پر اعتماد، سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ، 100 انڈیکس میں 724 پوائنٹس کا اضافہ، 59,811 پر بند، 20 ارب 27 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 65 کروڑ 75 لاکھ سے زیادہ شیئرز کا کاروبار۔ اسٹیٹ بینک میں اسٹرکچرل ریفارمز جاری، نگراں حکومت معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہے۔ آئی ایم ایف سے دوسری قسط موصول ہونے سے روپے کی قدر میں مزید بہتری آئے گی۔ ملک میں گندم کی کوئی قلت نہیں، مجموعی طور پر 72 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد کے ذخائر موجود ہیں۔ اطلاعات و نشریات اور پارلیمانی امور کے وزیر مرتضیٰ سولنگی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ غزہ میں 4 روزہ عارضی جنگ بندی کا آخری ڈوز، مزید فلسطینی قیدیوں اور اسرائیلی جنگجوؤں کی رہائی متوقع۔ جنگ بندی میں 4 دن کی توسیع کے لیے عالمی کوششیں، اب تک 117 فلسطینی قیدی اور 39 اسرائیلی جنگجو رہا ہو چکے۔ صہیونی فوج کی دہشت گردی جاری، مقبوضہ مغربی کنارے سے مزید 60 فلسطینی گرفتار۔ مشرق وسطی میں پائیدار امن 2 ریاستی حل سے مشروط، اسی طرح اسرائیل اور فلسطین کی طویل مدتی سلامتی کی ضمانت دی جا سکتی ہے، امریکی صدر جو بائیڈن۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، چمن اور ترخم کے راستے مزید افغان شہریوں کی روانگی، غیر قانونی غیر ملکیوں کو ملازمت دینے پر پابندی، افغان شہری پاکستان میں سیاسی اور انتخابی سرگرمیوں میں کسی امیدوار کی مدد نہیں کر سکتے، فنڈنگ فراہم کرنا غیر قانونی ہوگا، ایسی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو ملک بدر کر دیا جائے گا، وزارت داخلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت، نواز شریف کے وکیل امجد پرویز کے دلائل، نیب ریفرنس میں فرد جرم درست طور پر عائد ہوئی، نہ ہی نیب کو معلوم تھا کہ شواہد کیا ہیں، چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارک، سماعت بدھ تک ملتوی۔
سینیٹر سراج الحق کی قیادت میں خوشحال پاکستان کاروان راجنپور پہنچ گیا۔ عوام نظام کی تبدیلی کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ پاکستان میں امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھ گیا، پسماندہ طبقہ مزید مشکلات کا شکار ہو گیا ہے۔ عام آدمی کی حکومت کے لیے عوام پر ہم پر اعتماد کریں، امیر جماعت اسلامی کا خطاب۔ گردوارہ جنمستان میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات، دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی شرکت، مذہبی رسومات کی ادائیگی، وزیر مذہبی امور کی مرکزی تقریب میں خصوصی شرکت۔ ہمارا پیغام محبت ہے، یقین ہے کہ سکھ یاتری امن اور محبت کے پیغام کے ساتھ پاکستان کا مثبت تشخص دنیا بھر میں اجاگر کریں گے، انیس احمد کا خطاب۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج کے ظالمانہ ہتھ کنڈے، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں مختلف اضلاع میں متعدد کشمیری نوجوان گرفتار۔ مقبوضہ وادی کھلی جیل میں تبدیل، 10 لاکھ قابض فوج کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں کی زندگی اجیر۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموگ کا راج، معمولاتی زندگی شدید متاثر، صورتحال پر کنٹرول کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے چالان، لاہور میں مصنوعی بارش برسانے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ورکنگ گروپ قائم۔ شعلہ بیاں مقرر، باکمال صحافی، صاحب طرز ادیب اور شاعر بابا صحافت مولانا ظفر علی خان کی 67ویں برسی۔ زمیندار اخبار کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں میں سیاسی شعور کی بیداری میں کلیدی کردار ادا کیا، پر اثر تحریروں سے بر صغیر کے مسلمانوں میں علیحدہ وطن کی امنگ پیدا کی، صحافت اور ادب کے شعبے پر ان منٹ نقوش چھوڑے۔ قومی کانفرنس، آج کے قارئین کل کے سیکھنے والے، اختتام پذیر، کتاب کی محبت زندہ رکھنے کے لیے شاندار کتاب میلہ، معروف پبلشرز کے سٹالز پر موجود کتابیں شائقین کی توجہ کا مرکز، طالب علموں کا مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار۔ لاہور میں پاک چین صنعتی نمائش، 250 سے زیادہ کمپنیز کی شرکت، زراعت، ٹیکسٹائل، آٹو پارٹس، کیمیکلز، الیکٹرانکس، انجینئرنگ اور تعمیراتی مشینری تیار کرنے والی کمپنیز کے سٹالز۔ نیوزی لینڈ کے خلاف کرکٹ سیریز، پاکستان ویمن ٹیم کا کرائسٹ چرچ میں پریکٹس سیشن، بیٹنگ اور بالنگ کی مشقیں، دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ٹی20 اور 3 ون ڈے میچز کھیلے جائیں گے، پہلا ٹی20 3 دسمبر کو ہوگا۔ اور ڈیوس کپ کا ٹائٹل اٹلی کے نام، فائنل میں اٹلی کی آسٹریلیا کے خلاف 2-0 سے کامیابی، آسٹریلیا 28 بار ورلڈ چیمپئن رہ چکا ہے۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبرنامے میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم کے دورہ متحدہ عرب امارات کی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران پاکستان اور UAE کے درمیان مختلف شعبوں میں اربوں ڈالر کے معاہدے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان معاشی ترقی، علاقائی استحکام اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی قیادت میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ ان منصوبوں کے ثمرات بہت جلد سامنے آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ابوظہبی میں ملٹی بلین ڈالر کے MOUs سائن ہوئے پاکستان اور UAE کے مابین، جس میں مختلف سیکٹرز تھے، اور اس میں UAE اور پاکستان کے بیچ میں ایک نیا دور اکنامک کوآپریشن کا، ریجنل اسٹیبلٹی کے حوالے سے، اسٹریٹجک کوآپریشن کے حوالے سے ایک نئے دور میں داخل ہوا ہے۔ اس پہ میں پاکستان اور UAE کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ دوستی جو شیخ زاید نے 70 کی دہائیوں میں اس کی بنیاد رکھی، اس کو آج ان کے صاحبزادے ہز ہائنس شیخ محمد بن زائد ال نہیان وہ ایک نئے دور کی جانب لے گئے۔ اس موقع پہ
पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान के वफाकी वज़रा, ये तमाम मौजूद थे। उनकी जानिब से उनके तमाम अहम वज़रा इस में शरीक हुए और ये टेंजिबल प्रोजेक्ट्स में बहुत जल्द इसके समरात, इकनॉमिक समरात वो पाकिस्तान की मईशत पे बड़े मुस्बत अंदाज में आने वाले दिनों में सामने आएंगे। एक मरतबा फिर पाक यूएई दोस्ती जिंदाबाद। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के सिलसिले में अहम संग मील साबित होगा। तफसील जानेंगे मोहम्मद शाहिद से। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात मजबूत माशी ताल्लुकात में जुड़े बरादर इस्लामी मुल्क हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के सिलसिले में मुफ़ाहिमत की कई यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। इनमें ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, कानकनी, माहौलियात और तवानाई समेत दीगर कई शोबे शामिल हैं। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मौजूदा तिजारती हुजम तकरीबन $10 अरब है। इस दौरे के नतीजे में दो तरफ़ा तिजारती हुजम में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। इंसानी वसाइल की बरामद के हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के लिए बड़ी मंडियों में शामिल है, जहाँ 16 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी बरसरे रोज़गार हैं और हर साल तकरीबन $6 अरब से ज़ायद की तरसीलात ज़र वतन बेचते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और सनत व ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने के अलावा दोनों मुल्कों की निजी शोबे के लिए कारोबारी मौक़े में इजाफे का भी सबब बनेगा। मोहम्मद शाहिद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारती सरगर्मियों में इजाफे के लिए वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। राहिल अंसार की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सदियों पर मुहित बरादराना तल्लुकात दोनों मुल्कों की इक्तिसादी तरक्की, दरामदात और बरामदात में इजाफे समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन के फ़रोग़ का बायस हैं। इन तल्लुकात की बुनियाद पर दोनों मुल्कों में $10 अरब से ज़ायद दो तरफ़ा तजारत के हुजम में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान होने वाले जामे इक्तिसादी शराकत दारी के मुआहदों से खातर खा इजाफा मतवक्को है। मशरक़ वस्ता में मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानी बरामदी मसनूआत का मरकज़ है। पाकिस्तान की कुल बरामदात का 62% सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात की मार्केट को जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात को पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बरामद की जाने वाली मसनूआत में मलबूसात, चावल, गाय का गोश्त और आम समेत दीगर फल शामिल हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सोलर एनर्जी, विंड और काबिल तजदीद तवानाई समेत साफ तवानाई के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी भी मतवक्को है। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने बरादराना तल्लुकात को सबसे ज्यादा तरजीह देता है और इन तल्लुकात को इक्तिसादी महाज की बुलंदियों तक ले जाने का ख्वाहिशमंद है। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला ने GHQ में मुलाकात की। मुलाकात में दिफा, सलामती और फौजी तरबियत समेत दीगर शोबों में ताउन, इलाकाई सूरत हाल और मशरक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खात्मे और खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहते हुए कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने स्ट्रेटेजिक और बिरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला GHQ पहुंचे तो पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा और सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। नाजरीन, एक बार फिर पाकिस्तान में दहशत गर्दी में अफगानिस्तान का शहरी मुलव्वस निकला। गुज़िश्ता रोज बनू के इलाके बकाखेल में खुदकुश हमले के नतीजे में 2 शहरी शहीद जबकि 3 फौजी एहलकारों समेत 10 शहरी जख्मी हुए थे। ISPR के मुताबिक ये खुदकुश हमला आवर अफगान शहरी था। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान। मुल्क में दहशत गर्दी के होने वाले वाकयात में अफगान शहरियों के मुलविस होने के एक बाद एक वाज़ेह सबूत मिल रहे हैं।
गुज़िश्ता रोज बन्नू के इलाके बका खेल में मोटरसाइकिल रिक्शे में होने वाले खुदकश बम धमाके की तहकीकात से पता चला कि तस्करा नंबर 089166164 रखने वाला दहशतगर्द अफगान शहरी राबिनुल्लाह वल्द खानूर गुल था, जिसका ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। इस वाक़े से एक बार फिर इस तासुर को तक़वियत मिली है कि कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगान शहरी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस पाए जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अफगान हुकूमत ने TTP के एक ख्वारिज और दहशतगर्द को ये कानूनी दस्तावेज क्यों दी, और क्या अब कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगानियों को भी मुल्क बदर करना पड़ेगा। गुज़िश्ता एक साल के दौरान पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाला ये 16वां खुदकश हमलावर था। बदकिस्मती से अफगान अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और खुदकश हमलों में 500% इजाफा हुआ। पिछले 2 सालों में 2267 मासूम पाकिस्तानी शहरियों की जानें इस अंदोखनाक खून रेजी की भेंट चढ़ चुकी हैं, जिसके जिम्मेदार तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं, जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले कर रहे हैं। दहशतगर्दी की हालिया वाक़यात में गैर मामूली तेजी न सिर्फ मायनी खेज है, बल्कि रियासत पाकिस्तान के खदशात की तौसीक भी करती है। हालात का तकाजा है कि अफगान अबूरी हुकूमत भी अमन का जवाब अमन से दे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस अफगानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के हवाले करे और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सरगोबी के लिए हर मुमकिन इकदामात करते हुए अफगानिस्तान में मौजूद उनके ठिकानों और तरबियती मराकज़ का कला कमा करे। इमरान मसूद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और हज 2024 के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज हो गया है। सरकारी हज स्कीम के तहत 15 नामजद बैंकों में हज दरख्वास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक आइंदा बरस तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। मुकर्ररा तादाद से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाज़ी की जाएगी, जबकि ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। दरख्वास्तें कारामद पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जमा कराई जा सकेंगी। पासपोर्ट अप्लाई करने के टोकन पर भी हज दरख्वास्त दी जा सकेगी। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 25,000 नशिस्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर जमा होंगी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 724 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 59,800 की सतह को अबूर करते हुए 59,811 पर बंद हुआ। तफसील बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। कारोबारी हफ्ते के आगाज से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स ने 59,800 की सतह को अबूर किया और इससे बरकरार भी रखा। मुआशी माहिरीन का कहना है कि पॉलिसियों के तसलसल से पुरुमीद हैं कि 100 इंडेक्स तारीख के नए रिकॉर्ड अबूर करेगा। इस वक्त स्टॉक मार्केट में जिस तरह बैंक्स का भी फ़ायदा हुआ है, जिस तरह हमने देखा ऑयल और गैस सेक्टर के अंदर इस वक्त फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। हमने अभी न्यूज़ सुनी कि जी अभी इंटरेस्ट रेट भी अगले 1 साल के अंदर हम 15% पे लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, ये सारे स्टेप्स हैं जो हमें शो कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरी की तरफ चल रहा है, स्टेप्स फॉरवर्ड की तरफ चल रहा है और इन्हीं फैक्टर्स को देखते हुए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। बाजार हिस्से में 65 करोड़ 75 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 20 अरब 27 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। बाजार हिस्से में 243 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 119 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 25 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। बाजार हिस्से में सीमेंट, केमिकल्स, कमर्शियल बैंक्स और इंजीनियरिंग के शोबे से ताल्लुक रखने वाली कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में नुमाया इजाफा देखा गया। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इत्तलात व नशरियात और पार्लिमानी उमूर के वजीर मुर्तज़ा सोलंकी ने सेनेट को बताया कि निगरान हुकूमत माशी इस्तेहकाम के लिए कोशां है। IMF से दूसरी किस्त मौसूल होने से रुपए की कदर में मजीद बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में गंदम की कोई किल्लत नहीं। मजीद तफसील बताएंगे रिजवान आरिफ। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। इजलास में सेनेटर सानिया निश्तर की जानिब से मुल्क में गंदम की किल्लत की तहरीक पर बहस समेटते हुए पार्लिमानी अमूर के निगरान वजीर मुर्तज़ा सोलंकी ने बताया कि मुल्क में गंदम की किल्लत नहीं, मजमूई तौर पर इस वक्त मुल्क में 72 लाख मैट्रिक टन से जायद गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है। ग्रैंड टोटल 72,13,884 मैट्रिक टन। सूबों की जो सपोर्ट प्राइस है, पंजाब की 4,600 और सिंध की 4,700 सपोर्ट प्राइस है, लेकिन जो इम्पोर्टेड है वो उसकी कीमत कम है, तो इसलिए उनके पास वाफर तादाद जो है वो गंदम की मौजूद है। पार्लिमानी अमूर के निगरान वजीर मुर्तज़ा सोलंकी ने ऐवान को बताया स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत IMF की दूसरी किस्त आने से रुपए की कदर में बेहतरी आएगी। हमें तवक्को यही है कि IMF का जो रिव्यू है, अब जब दूसरी ट्रांश है वो आएगी तो उसके बाद रुपए की कदर में बेहतरी आएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट उन इक़दामात के बाद जो है वो
पोजीशन जो है वो पहले से बेहतर है। कायदे ईवान इसहाक डार ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मजबूत करेंसी ही मुल्क की तरक्की का जरिया बनती है। हमारे लिमिटेड रिजर्व्स हैं, आपकी करेंसी जब डिवैल्यू होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। पाकिस्तान डजंट एक्सपोर्ट सरप्लस, वी आर नॉट चाइना। इसका हल हमें बैठ के एपॉलिटिकल होकर सोचना चाहिए, ये बिल्कुल तबाही का रास्ता है। सेनेट ने इंसानियत की खिदमत करने वाले कारकुनान और तंजीमों से मुतालिक करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद सेनेटर सानिया निश्तर ने पेश की। ईवान ने दासू और दयामिर भाषा डैमों के इलाकों में मौजूदा सूरत हाल पर खदशात के हवाले से करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। ये करारदाद सेनेटर तलहा महमूद ने पेश की। सेनेट का इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इक़्तिसादी सफारतकारी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। नाइजीरिया के साथ तिजारती, इक़्तिसादी और सकाफती ताउन में इजाफे की ज़रूरत है। नाइजीरिया के लिए नामजद हाई कमिश्नर रिटायर्ड मेजर जनरल सुहेल अहमद खान से इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम और रवाबित को बढ़ाना होगा। उम्मीद है नामजद हाई कमिश्नर तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। कुछ बात करेंगे गजा की, जहां 4 रोज़ा आरजी जंग बंदी का आज आखिरी रोज़ है। उधर कतर, मिस्र, अमरीका, स्पेन और यूरोपीय यूनियन ने गजा में 4 रोज़ा जंग बंदी में तोसी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि कैदियों के तबादले के लिए लड़ाई में वक्फा जारी रहने की उम्मीद है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने भी जंग बंदी में तोसी की हिमायत की है। नेटो के सरबराह ने भी गजा में जंग बंदी की मुद्दत में तोसी पर जोर दिया है। ब्रसल्स में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि जंग बंदी में तोसी से गजा के लोगों को ज़रूरी रिलीफ मिलेगा और मज़ीद जरगबानियों की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीनी हुकाम 4 दिन की तोसी के ख़्वाह हैं, जबकि इसराइल रोज़ाना की बुनियाद पर तोसी चाहता है। उधर इसराइल ने भी मज़ीद 50 जरगबानियों की रिहाई के बदले जंग बंदी में तोसी के लिए रजामंदी ज़ाहिर की है। बयान में कहा गया है कि इस सिलसिले में मुतल्लिका फ़रीक को आगाह कर दिया है। आरजी जंगबंदी समझौते के तहत आज मज़ीद फ़लस्तीनी कैदियों और इसराइली जरगमालियों की रिहाई मुतवक्के है। इसराइली हुकाम ने तस्दीक की है कि मज़ीद 11 जरगमालियों की फहरिस्त मौसूल हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ 39 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले 17 इसराइली जरगमालियों को रिहा किया गया। रिहाई पाने वालों में 3 थाई और 1 रूसी शहरी भी शामिल था। आरजी जंगबंदी के दौरान अब तक 117 फ़लस्तीनी कैदी और 39 इसराइली जरगमाली रिहा किए जा चुके हैं। उधर फ़लस्तीनी कैदियों की सोसाइटी ने इंकशाफ किया है कि इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे से रात की तारीकी में मज़ीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। जंगबंदी के दौरान फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। इतवार को ईंधन और गैस के 4 ट्रकों समेत मज़ीद 120 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। सिहोनी फोर्सेज ने गुज़िश्ता नाम नहाद छापों के दौरान मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहरियों को हिरासत में लिया। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक 7 अक्टूबर से गजा और मगरबी किनारे में जारी इसराइली दहशत गर्दी में अब तक 15,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद जबकि 30,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि दो रियासती हल ही वाहिद रास्ता है जिससे इसराइल और फ़लस्तीन की तवील मुद्दती सलामती की ज़मानत दी जा सकती है। सदर जो बाइडन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि कोशिश है इसराइल और फ़लस्तीन यकसा तौर पर आज़ादी और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, इसलिए 2 रियासती हल ही बेहतर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इंसानी बुनियादों पर गजा में मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर दिया है। एंटोनियो गुतेरेस ने एक बयान में कहा कि इलाके में इंसानी तबाही बतदरीज बढ़ती जा रही है। अफ्रीकैन के दरमियान बातचीत का अमल जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के नतीजे में मुस्तकिल जंगबंदी मुमकिन होगी और अक़वाम मुत्तहिदा इन कोशिशों की हर मुमकिन हिमायत जारी रखेगा। नाज़रीन, मुल्क से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बाइज़्ज़त तौर पर वतन वापसी का सिलसिला जारी है। चमन और दुरखम बॉर्डर पर रोज़ाना की बुनियादों पर हज़ारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ 1640 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,54,775 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। लोगों को मुतनबे किया जाता है कि वो गैर कानूनी गैर मुल्कियों को रोज़गार फराहम न करें। पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों को भी खबरदार किया जाता है कि पाकिस्तान की इंतखाबी सरगर्मियों में किसी भी उम्मीदवार की मदद करना या फंड्स फराहम करना गैर कानूनी है। ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस किसी भी अफगान शहरी को पाकिस्तान में कानूनी हैसियत से क़तई नज़र मुल्क बदर कर दिया जाएगा। और हुकूमत और पाक फौज की जानिब से एपिक्स कमेटी के इजलास में 1 अक्टूबर से अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क वापस भेजने का फैसला किया गया। 31 अक्टूबर को मोहलत खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज़्ज़त इनखला यकीनी बनाया गया।
इस हवाले से शहरियों ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत का अफगान बाशिंदों के इनखला का फैसला बहुत अच्छा है। इससे हमारी मईशत पर मुस्बत असर पड़ा है, जराइम में भी कमी वाक़ई हुई है। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, हमारी इकनॉमी में भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ गया है, ये बहुत अच्छी हो गई है। और इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम में भी बहुत फ़र्क आ गया है। अब हमारे बच्चे महफूज है, जो मतलब बेहतर हो हमारे लिए, हमारे रियासत हमारे लिए वही फैसला करेगी। जिस दिन से वो जाना शुरू हुए हैं उस दिन से इकॉनमी में बेहतरी आना शुरू हुई है, कारोबार बहाल होना शुरू हो गए हैं और चोरी डकैती मतलब बहुत कम देखने में आ रही है। हमारी रियासत ने जो इक़दाम उठाया था अफगानियों को जो अपने मुल्क भेजना, तो उससे जो है बेहतरी हमारे मुल्क में बेहतरी आई है। मैंने ये देखा कि जैसे जैसे अफगानी जा रहे हैं इस मुल्क से बाहर, हमारे पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है। हमारे रियासती इदारों ने जो इकदाम उठाया था कि इनको इनके मुल्क वापस भेजा जाए, तो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी भी माशाल्लाह से डेवलप हो रही है और पाकिस्तान के हालत भी बेहतरी की तरफ हो रहे हैं। इंसदाद दहशत गर्दी की कसीर मुल्की मश्क फजर शर्क पंजम नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक्किद हुई। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली इस मश्क में पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। इस मश्क का मकसद बाहमी ताउन का फ़रोग़ और तजुर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल करना था। मश्क में शरीक मुल्कों के दस्तों की तरफ से पेशावराना महारत और जज्बे का मुज़ाहिरा दीदनी था। كما يتقدم الجيش الكويتي بالشكر والعرفان للجيش الباكستاني على الدعوة لتمرين باكستان. We hope that we can exchange special forces experience between each other, and we thank the Pakistan Army for inviting us in this training فجر الشرق 5. ونشكر جمهورية باكستان الإسلامية على دعمها المستمر والتعاون بين الدول على تطوير الخبرات العسكرية في مجال مكافحة الإرهاب. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत बुध तक मुलतवी हो गई। दौरान समाअत डिवीजन बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म दुरुस्त तौर पर आयद नहीं हुई और ना ही नैब को मालूम था कि शवाहिद क्या हैं। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल और अल अज़ीज़िया में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि JIT रिपोर्ट के वॉल्यूम 10 की कॉपी हमें फराहम नहीं की गई। नैब ने पहले इब्तदाई और बाद में ज़िमनी तफ्तीशी रिपोर्ट जमा कराई। इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट में सिर्फ TV इंटरव्यूज़ और नवाज शरीफ की असेंबली फ्लोर पर की गई तकरीर पेश की गई। एक गवाह रॉबर्ट रेड्डी ने उसको पेश किया गया जो नवाज शरीफ की हद तक मुतल्लिका ही नहीं था। हमारा मौक़िफ़ है कि फ़र्द जुर्म भी गलत आयद की गई। एवनफील्ड में 18 में से 6 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके, तो नैब ने ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। हमारा केस ओपन हुआ और दिफा वाज़े हो गया तो ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया गया। एडवोकेट अमजद परवेज़ आइंदा समाअत पर भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। नारोवाल में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि असर हाजिर के चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। तफसील बता रहे हैं आसिम नज़ीर भट्टी। मुस्तकबिल की मईशत के उन्वान से होने वाली इस कौमी कॉन्फ्रेंस में माहिरीन तालीम, मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान और मारूफ कंपनियों के CEOs ने शिरकत की। कौमी कॉन्फ्रेंस में मईशत को दरपेश चैलेंजेस और उनके हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इस मौके पर अपने कलीदी खिताब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि हमें मईशत को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए आने वाले दौर के लिए तब्दीली को समझ कर जदीद रास्तों को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत के जरिए पैदावारी सलाहियत में इजाफा करना होगा। एहसन इकबाल ने कहा कि ऑटोमेशन से रोजगार के मुतबादिल ज़राए पैदा होंगे। हमें अपनी जामियात को तहकीक बराए तरक्की की जानिब मबजूल करना होगा। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ नौजवानों के लिए फ़नी तरबियत का एहतमाम करें। तदरीस के तमाम तरीकों को बदलना है, चूंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये क्रिएटिविटी की हम इन बातें कर रहे हैं, रोबोटिक्स की और 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, इसकी करेंसी रट्टा नहीं है। अपने नौजवानों को एनालिटिकल स्किल्स देने हैं, उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग देनी है, उन्हें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखानी है। कौमी कॉन्फ्रेंस में हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के नुमाइंदों और दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों और सनत के दरमियान ताउन को फरोग देकर ग्रेजुएट्स को सनती जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जा सकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया की तेज रफ्तार तरक्की का मुकाबला जदीद तालीम और तहकीक के जरिए ही मुमकिन है। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, नारोवाल।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की क़यादत में खुशहाल पाकिस्तान कारवां राजनपुर पहुँच गया। कारकुनों की बड़ी तादाद ने जगह जगह काफिले पर फूल निछावर किए। जामपुर, फाजिलपुर और राजनपुर में रैलियों से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि अवाम निज़ाम की तब्दीली के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क बढ़ गया है और पसमानदा तबका मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो गया है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अवाम हम पर एतमाद करें और आइंदा आम इंतखाबात में वोट देकर इक़्तिदार में लाएं ताकि आम आदमी की हुकूमत कायम हो। सेक्रेटरी जनरल सैयद दैयर हुसैन बुखारी की सदारत में पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात पर तफसीली गौर हुआ। इजलास में कौमी और सूबाई सतह की अहम सियासी शख्सियात से राबते का भी फैसला हुआ। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सैयद दैयर बुखारी ने कौमी और सूबाई शख्सियात से मुलाकातों के शेड्यूल के लिए कमेटी मेंबरान को अहम टास्क भी सौंप दिए। और मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। फैसलाबाद चैम्बर के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मेड इन पाकिस्तान का फ़रोग़ हमारी जमात की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि 2017 में मुल्क की तरक्की का रास्ता ना रोका जाता तो मुल्क तरक्की की मनाजिल तय कर चुका होता। वफ़द ने सनती तरक्की के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के सिलसिले में बलोचिस्तान में भी इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आ रही है। कॉर्नर मीटिंग्स के साथ कौमी जमातों के कायदीन भी अवामी राबता मुहिम के लिए कोयटा पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे वकार अहमद। इलेक्शन 2024 बलूचिस्तान में नेशनल असेंबली की 16 और सूबाई असेंबली के 51 हलकों से अवामी नुमाइंदगी हासिल करने के लिए सियासी जमातों की मुहिम तेज हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के बाद आसिफ अली जरदारी 30 नवंबर को कोयटा पहुंचेंगे। JUI 29 अक्टूबर को फलस्तीन कॉज के लिए एहतजाजी जलसा करके पार्टी स्ट्रीट पावर दिखा चुकी है। 14 नवंबर को मुस्लिम लीग की मरकजी क़यादत के कोयटा दौरे में 30 के करीब बलूचिस्तान के साबिक पार्लियामेंटेरियन और अहम इलेक्टेबल्स PML-N का हिस्सा बन गए। BAP, PK मैप, नेशनल पार्टी और जमीयत बलूचिस्तान का झुकाव भी नून लीग की ही सिमत है। सरदार अख्तरजान मींगल के 22 अक्टूबर के वट कोयटा रोड शो से BNP का वोट बैंक भी जाहिर है। पीपल्स पार्टी 56वें फाउंडेशन डे पर बलूचिस्तान से इलेक्शन कैंपेन का आगाज करेगी। ANP के सीनियर नायब सदर अमीर हैदर होती भी कोयटा का सियासी दौरा कर चुके हैं। इलेक्टेबल जो है वो कभी किसी पार्टी में जाते हैं, कभी किसी पार्टी में जाते हैं, तो यहाँ पे असूल और नजरियात कोई मायने नहीं रखते। मुल्क को ज़रूरत है एक मुस्तहकम हुकूमत की और एक ऐसी क़यादत की जो कि मुल्क को मौजूदा सियासी बहरान से और माशी बहरान बेसिकली जो है उससे निकाल सके। बलूचिस्तान की सियासत में भी इलेक्शन स्ट्रेटेजी के तौर पर पॉलिटिकल अलायंसेस बनते भी हैं और सियासी वाबस्तियां तब्दील भी होती हैं। वन मैन वन वोट की सियासत में कबायली रिवायत का भी गहरा असर होता है। अहम ये नहीं कि किसके जलसे में ज्यादा सपोर्टर्स पहुंचे और किसके कम, अहम ये है कि पोलिंग डे पर वोटर्स और बैलेट पेपर्स किस उम्मीदवार और किस जमात पर इत्मीनान करते हैं। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नौजवान हैं और वो नौजवान नस्ल को आगे लाना चाहते हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी का यौम तासीस 30 नवंबर को कोयटा में मनाया जाएगा, जिसमें पार्टी चेयरमैन समेत पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत शरीक होगी। नाज़रीन, रावलपिंडी के इलाके अडियाला में शहरियों ने चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज किया। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के मौके पर बुशरा बीबी अडियाला जेल के करीब पहुंची तो मुजाहिरीन ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। मुजाहिरीन ने बुशरा बीबी की गाड़ी का अडियाला जेल के गेट तक पीछा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने जाली पेरनी नामंजूर, जाली निकाह नामंजूर और चेयरमैन PTI मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने बताया कि वो आम शहरी हैं और उनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI को जुडिशल कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। चेयरमैन PTI, उनकी अहलिया और वकला कमरे अदालत में मौजूद थे। अदालत ने नायब हुकाम की जानिब से मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलाली ने ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन की उमूर दाखिला के कमिश्नर यल्वा जोहानसन से मुलाकात की। मुलाकात में नकल मुकानी के बारे में तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि निगरान वज़ीर ख़ारिजा और यूरोपीय यूनियन की हाई कमिश्नर बराए उमूर दाखिला ने नकल मुकानी के लिए कानूनी रास्ते तलाश करने के लिए पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन के मौके पर सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा जन्मस्थान में मजहबी रसूमात अदा की। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस खटाना।
सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौका पर 20,000 से ज्यादा सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा जन्म स्थान की यात्रा की। इनमें भारत और दुनिया के दूसरे मुल्कों से 7,000 गैर मुल्की सिख यात्री भी शामिल थे। निगरान वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने मरकजी तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम गुरुद्वारों की हिफाजत और तज़ीन व आराइश को यकीनी बनाया जा रहा है। बाबा गुरु नानक तौहीद की बात करते थे, तौहीद की बात करते रहे और तौहीद को समाजी वहदत में तब्दील करने की कोशिश करते रहे। आप फरमाते रहे कि जो रब का है वो सबका है। मरकजी तकरीब से चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड सैयद अताउर रहमान, सिख कौम के सुप्रीम लीडर ज्ञानी हरप्रीत सिंह, भारतीय वफद के सरबरा खुशविंदर सिंह, चेयरमैन पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह और दीगर ने भी खिताब किया। मुकर्रीन ने कहा कि इस्लाम की तरह सिख मजहब भी मसावात और भाईचारे का दर्स देता है। उन्होंने बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने भी गुरुद्वारा जन्म स्थान का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर सिख यात्रियों ने अपनी मजहबी रसूमात अदा की। नगर कीर्तन का जुलूस गुरुद्वारा जन्म स्थान से शुरू हुआ और 7 गुरुद्वारों से होता हुआ वापस गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जो रब का है वो सबका है, इसी वादत के पैगाम के साथ बाबा गुरु नानक जी ने जिंदगी तमाम की। अवैस खटाना, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने कई कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, शोपियां, राजौरी और किश्तवाड़ समेत मुख्तलिफ अजला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ की और घरों पर छापे मारे। कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद नौजवानों को मनगढ़ंत इल्जामात पर गिरफ्तार कर लिया और उनकी गिरफ्तारी का जवाब पेश करने के लिए उन्हें मुजाहिदीन के मुआवनीन करार दिया। मकबूजा इलाके में आज़ादी पसंद सरगर्मियों को रोकने के लिए भारतीय फौज और एजेंसियों ने कम्युनिटी लीडर्स और उलमाए दीन समेत लोगों की सख्त निगरानी शुरू कर दी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि भारत ने पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया है। बीजेपी हुकूमत मजलूम कश्मीरियों पर जंग मुसल्लत करने के लिए अपनी फौज और पुलिस को इस्तेमाल कर रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मकबूजा इलाके में तकरीबन 10 लाख भारतीय फौजियों की मौजूदगी की वजह से कश्मीरियों की जान, माल, इज्जत व आबरू महफूज नहीं है। दूसरी जानिब सख्त पाबंदियों और शदीद सर्द मौसम के बावजूद सैकड़ों कश्मीरियों ने, जिनमें बेशतर किसान, ताजिर और ट्रांसपोर्टर्स थे, मकबूजा जम्मू कश्मीर की मईशत को निशाना बनाने के लिए भारतीय हुकूमत की जालिमाना पॉलिसीज़ के खिलाफ श्रीनगर प्रेस इनक्लेव में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कश्मीरी ताजिरों, ट्रांसपोर्टरों और किसानों के खिलाफ पॉलिसियाँ वज़ा करने पर काबिज हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने भी मकबूजा इलाके में भारतीय जनता पार्टी की बदउनवानियों के खिलाफ जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरा किया। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया, जहां उन्हें प्रोग्राम के मुख्तलिफ मंसूबों के बारे में ब्रीफ किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब का कहना था कि 93 लाख जरूरतमंद घरानों की खिदमत इबादत के मुतरादिफ है। गरीब घरानों के बच्चों को फ़नी महारत के शोबों से मुंसलिक किया जाए। इस मौके पर चेयरपर्सन BISP ने मुस्तहिक़ ख़वातीन से भी मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। उन्होंने हिदायत की कि किसी कटौती के बगैर वज़ाइफ की अदायगी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान टेलीविजन में जिद्दत का सफर जारी है। PTV करंट अफेयर्स के प्रोग्राम कैपिटल व्यू ने वर्चुअल स्टूडियो से अपनी नशरियात का बाकायदा आगाज कर दिया है। ये PTV करंट अफेयर्स का पहला प्रोग्राम है जो वर्चुअल सेट से बराह रास्त नशर किया गया है। PTV ने नहायत खुशउस्लूबी से एनालॉग से HD और अब HD से जिद्दत के तकाज़ों को पूरा करते हुए वर्चुअल स्टूडियो से अपनी नशरियात का आगाज कर दिया है। PTV हर दौर में अपने नाज़रीन को मालूमात तक रसाई और हालात हाज़रा से बाखबर रखने के लिए पुरअज़्म है। और नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और पंजाब के दीगर अजला स्मोग की लपेट में हैं। स्मोग की सूरत हाल और इसके तदारुक के लिए किए जाने वाले इक़दामात की तफसील बता रहे हैं मुअज़्ज़मुद्दीन। स्मॉग के हवाले से नए एदादो शुमार के मुताबिक लाहौर और पंजाब के दीगर अजला में स्मॉग अभी तक शहरियों के लिए रोक बना हुआ है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 299 रहा, जेल रोड पर 297, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड किया गया। शाले वैली रेंज रोड रावलपिंडी पर 194 और फैसलाबाद बाईपास रोड शेखुपुरा पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग के तदारुक के लिए गुज़श्ता 3 दिन ट्रैफिक के दबाव में कमी और गाड़ियों की आमदोरफ्त को महदूद रखा गया। लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान और सरगोदा डिवीजन में तालीमी इदारे खुल गए, जबकि मार्केटों और बाजारों में भी कारोबारी सरगर्मियां जारी रहीं। ताहम शहरियों को मास्क पहनने का पाबंद किया गया है। जरूरी है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें, बच्चों को केयर करें, अपनी केयर करें। ये हमने अपने आप को खुद ही सेव करना है कि सब लोगों को चाहिए कि मास्क पहना कर, स्पेशली ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्हें भी सबको अवेयरनेस देनी चाहिए। लाहौर में तो काफ़ी ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी, स्मोक वगैरह है, तो हमें चाहिए कि अपने घर से मास्क लगा के आना चाहिए। सारी चीज़ें गवर्नमेंट नहीं कर सकती,
जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। लाहौर में स्मॉग में कमी के लिए मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने और स्मॉग रिडक्शन टावर की तनसीब के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि क्लाउड सीडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मॉग का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और गुज़श्ता एक माह के दौरान धुआं छोड़ने वाली तकरीबन 5000 गाड़ियों के चालान किए गए हैं, जबकि फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नजर मुकर्रर बाकमाल सहाफ़ी, साहिब तर्ज अदीब और शायर मौलाना ज़फ़र अली खान की 67वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। बाबा सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली खान के इदारत में ज़मींदार अखबार ने बरसग़ीर के मुसलमानों में सियासी शऊर की बेदारी में कलीदी किरदार अदा किया। लाहौर से देखेंगे वरदा सलीम की रिपोर्ट। बेबाक सहाफ़ी, शोला बयान मुकर्रर और कादरुल कलाम शायर मौलाना ज़फ़र अली खान कलम कबीले के रूह रवां हैं। 1873 को वजीराबाद के गांव में पैदा होने वाले ज़फ़र अली खान की तमाम जिंदगी जदोजहद से इबारत है। पटियाला से मैट्रिक किया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से BA करने के बाद हैदराबाद चले गए और अपनी इल्मी और अदबी सरगर्मियाँ जारी रखी। मौलाना ज़फ़र अली खान इलामा इकबाल के हमअसर और साबे बसीरत रहनुमा थे। उन्होंने अपनी खुदादार सलाहियतों की बदौलत मुसलमानों की आज़ादी के लिए गिरां कदर खिदमात अंजाम दी। मौलाना ज़फ़र अली खान ने 1910 में अपने अखबार जिम्मेदार की इदारत संभाली और उसके जरिए बरसग़ीर की सहाफ़ती, सियासी और मजहबी तारीख रातों को बकाए नूर में बदल दिया। उन्होंने पंजाब में मुसलमानों को मुनज़्ज़म किया। उन्होंने अपनी पुरअसर तहरीरों से बरसग़ीर के मुसलमानों में अलहदा वतन की उमंग पैदा की। उनकी इन्हीं शानदार सहाफ़ती खिदमात के इतराफ़ में उन्हें बाबा सहाफ़त का खिताब दिया गया। मौलाना ज़फ़र अली खान कई किताबों के मुसन्नफ़ भी थे। मौलाना ज़फ़र अली खान 1937 में मरकजी असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए। लाहौर में मस्जिद शहीद गंज की शहादत के सहाने के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाना ने क़याम पाकिस्तान तक तहरीक आज़ादी में भरपूर किरदार अदा किया, मगर पाकिस्तान बनने के बाद खराबी सेहत की बिना पर अमली सरगर्मियों से अलहदगी इख्तियार कर ली। 27 नवंबर 1956 को अपने खालकी हकीकी से जा मिले। उन्हें वजीराबाद के गांव करमाबाद में सुपुर्द खाक किया गया। मौलाना ज़फ़र अली खान की इल्मी और अदबी सहाफ़ती खिदमात तारीख का रोशन बाप है। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मारूफ मुसन्निफ, शायर और सहाफ़ी मौलाना ज़फ़र अली खान की बरसी पर इस्लामाबाद में तकरीब हुई। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। बाबाए सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली खान की 67वीं बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए कौमी विरसा और सकाफत के निगरान वजीर जमाल शाह ने कहा कि मौलाना ज़फ़र अली खान सहाफ़त के दरख्शां सितारे थे, जिन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी और तहरीक पाकिस्तान के लिए सरगर्म किरदार अदा किया। ये तारीख राहों के वो मुसाफिर हैं जिन्होंने हमें आज़ादी बख्शी है, तो इनको सेलिब्रेट करना इस कौम का फ़र्ज़ है और इनके पैगामात को यंग जनरेशन तक पहुंचाना ये भी हमारा फ़र्ज़ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मौलाना ज़फ़र अली खान जैसे हीरोज़ की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। जिस दौर में जबर का आलम था, जिस दौर में हक और सच बात कहना और लिखना सबसे मुश्किल तरीन काम था, ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने उस मुश्किल दौर में भी हक लिखा, सच लिखा, तकलीफ बर्दाश्त की। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर एहसन बख्तावरी ने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो मौलाना ज़फ़र अली खान को अपना रोल मॉडल बनाएं। मुकर्रीन ने कहा कि मौलाना ज़फ़र अली खान ने चंद सालों में ज़मींदार अखबार को मकबूल तरीन अखबार बनाया, जिसने तहरीक आज़ादी की जदोजहद में कलीदी किरदार अदा किया। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी कॉन्फ्रेंस और किताब मेले का तीसरा रोज़ भी सरगर्मियों से भरपूर रहा। आखिरी दिन की तकरीबात में तलबा ने मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया। तफसील बताएंगे मलिक उमर। वफाकी तालीम और पेशा वाराना तरबियत के ज़ेर एहतमाम पाक चाइना सेंटर इस्लामाबाद में आज के कारीन कल के सीखने वाले के उन्वान से कौमी कॉन्फ्रेंस 3 रोज़ तक भरपूर अंदाज में जारी रही। निगरान वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने कहा कि तलबा में किताब कल्चर को फ़रोग़ देना होगा। कौमी कॉन्फ्रेंस और किताब मेले की कामयाबी इस अम्र का सबूत है कि लोगों के दिलों में किताब की मोहब्बत जिंदा है। इन 3 दिनों में 1 लाख से ज़ायद विजिटर्स आए और 5 मिलियन की किताबें 50% रेट पर 110 स्टॉल पर फरोख्त हुई। कॉन्फ्रेंस और किताब मेले के तीसरे दिन भी शहरियों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नामवर माहिरीन तालीम ने बच्चों की बुनियादी तालीम, किताब खानी के रुझान
اور ان کی بہتر تربیت کے لیے غیر نصابی سرگرمیوں کی اہمیت پر زور دیا۔ قومی کانفرنس کے تیسرے روز کی تقاریب میں بھی اسکولوں کے طلباء نے متنوع شعبوں میں اپنی صلاحیات کا اظہار کیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کی سرگرمیاں اور کتاب میلے بچوں میں کتاب خوانی کے کلچر کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بچوں میں کتابیں پڑھنے کا شعور پیدا کریں۔ کتاب میلے میں ملک کے معروف پبلشرز کی جانب سے شائع ہونے والی نئی اور پرانی کتب کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے۔ ان سٹالز میں بچوں کی نصابی اور غیر نصابی کتب کو خصوصیت سے رکھا گیا تھا۔ طلباء کی بڑی تعداد نے ان سٹالز کا بھی دورہ کیا اور اپنی پسند کی کتابیں خریدی۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ ان تعلقات کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ اسٹریٹجک تعاون اور بات چیت کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کی اہم ملاقات، اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ پی ٹی وی نیوز نوید اظہر سے۔ نوید بھائی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اور کیا صورتحال ہے اس حوالے سے، جو مختلف مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں، پھر نگراں وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے متحدہ عرب امارات کے صدر سے؟ جی بالکل، متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ عزت مآب شیخ محمد بن زائد ال نہیان جو ہیں ان کے زمانے میں انتہائی گہرے ہوئے ہیں، اور آج کی ملاقات میں بھی وزیر اعظم کے ساتھ آرمی چیف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں اور دیگر ارکان وفد کے وہ بھی موجود تھے۔ تو آج بھی انہوں نے بڑے پرجوش انداز سے پاکستان کے وفد کا استقبال کیا، اور وزیر اعظم اور یو اے ای کے صدر کے درمیان جو بات چیت تھی اس میں دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جو تاریخی اور گہرے برادرانہ تعلقات ہیں جو وقت کی ہر آزمائش پر پورے اترے ہیں، انہوں نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ اسٹریٹجک تعاون اور بات چیت کو دونوں رہنماؤں نے مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے اقتصادی اور مالیاتی شعبے میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کے لیے جو بھرپور تعاون کیا جاتا ہے ہمیشہ سے، اس پر گہرے تشکر کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات میں جو 1.8 ملین 18 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ وہاں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس میں بڑھوتری کے لیے ان کا انتہائی اہم کردار ہے۔ اس کے علاوہ ملاقات کے دوران مقبوضہ فلسطین میں انسانی حقوق کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کے حوالے سے خصوصی طور پر علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ اور OIC کی متعلقہ جو قراردادوں ہیں ان کے مطابق مسئلہ فلسطین کے منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے پاکستان کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے 28ویں جو کانفرنس ہے COP 28 کے لیے یو اے ای کی صدارت کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا، اور انہوں نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے قیام سے سمیت جو ماحولیات کے اثرات کو کم کرنے کے لیے جو کلیدی شعبوں میں مؤثر اور نتیجہ خیز عالمی اقدامات کی جانب بامانی جو پیش رفت ہے اس کے موقع پر اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان توانائی، پورٹ آپریشنز پروجیکٹس اور دیگر جو فوڈ سیکیورٹی، لاجسٹک، مدنیات، بینکنگ اینڈ فائنینشیل سروس کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے تعاون سے متعلق مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخطوں کے موقع پہ بھی دونوں رہنما موجود تھے، اور ان مفاہمت ناموں کی بدولت پاکستان اور یو اے ای میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے اس کی راہ ہموار ہوگی، اور جو SIFC جو ہے اس کے تحت مختلف اقدامات جو وزیر اعظم اور ان کی ٹیم لے رہی ہے اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یو اے ای پاکستان کا ایسا قابل اعتماد دوست ہے کہ ہمارے ہاں جو حالیہ سیلاب تھا اس میں بھی انہوں نے ایئر برج قائم کیا تھا اور پاکستان کی بھرپور مدد کی تھی، اور جب بھی کبھی مشکل وقت آیا ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور یہ دورہ بھی اسی چیز کی عکاسی کر رہا ہے جو گرمجوشی سے وزیر اعظم اور ان کی جو وفد کا استقبال وہاں کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ نوید اظہر، تفصیلات سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی متحدہ عرب امارات کے صدر سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔
फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। नाज़रीन, मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। इस मुहिम का मकसद मुल्क को मुकम्मल तौर पर पोलियो से पाक करना है। मुल्क भर में तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं नमरा सुहेल। पोलियो वायरस आम तौर पर 5 साल तक के बच्चों को मुतासर करता है। इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान, नाइजीरिया और अफगानिस्तान चंद ऐसे ममालिक हैं जहां पोलियो वायरस आज भी मौजूद है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर सेहत ने कहा, पोलियो के खात्मे के लिए मुहिम पर तेजी से काम जारी है। हम नेशनल प्रायोरिटी के तौर पे लेके इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, हर बच्चे तक वैक्सीन पहुंचाएंगे, न सिर्फ पोलियो की बल्कि बाकी भी हमारे जो रूटीन की इम्यूनाइजेशन है उसको भी इम्प्रूव कराने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने गवर्नर हाउस कराची में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 2 करोड़ 20 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि 2,04,000 पोलियो वर्कर्स मुहिम में हिस्सा लेंगे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर के मुताबिक रावलपिंडी और लाहौर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस के खदशे के पेश नजर इन अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम मखसूस अजला में 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में पिशावर, बन्नू, मर्दान, कोहाट, मालाकंड समेत हजारा डिवीजन के तमाम अजला शामिल हैं। मुहिम के दौरान 5 साल उम्र तक के 66,18,200 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगा। गिलगित बल्तिस्तान में 3 रोजा मुहिम के दौरान 2,58,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम को कामयाब करने के लिए 1,500 मोबाइल टीमें और 2,000 से ज्यादा टीमें मुकर्रर की गई हैं। अस्तोर में पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में हुई। पोलियो मुहिम के मॉनिटरिंग के लिए तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट पोलियो कंट्रोल रूम्स का कयाम भी अमल में लाया गया है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, खबराबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात में पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई, जिसके बाद दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम की शिद्दत के बाइस लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बल्तिस्तान डिवीज़न के तमाम अजला में आज मतला मुकम्मल तौर पर अब्र-आलूद है। स्कर्दू के मज़ाफ़ात में रात भर बर्फबारी और शहर में मौसम अब्र-आलूद होने की वजह से सर्दी में इजाफा हो गया है। आज इस्लामाबाद और स्कर्दू के माबैन परवाज़ मनसूख रही। और आज़ीन महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला अब्र-आलूद रहेगा। ताहम पंजाब के बेशतर इलाकों में सुबह के औकात में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पुलवामा में 3, अनंतनाग और शुपियाँ में 2, जबकि बारामूला में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 12, कराची 17, पेशावर 7, जबकि कोयटा में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।